Now we'll see frequency and number of ECT. कितनी बार ECT देना है? तो it depends on the condition of person. Uh, many people or many patients recover after the 6 to 7 sittings of ECT, and some require more than that. So most clients require an average of 6 to 12 treatments, but some may require up to 20 treatments. Treatments are usually administered every other day. तो आप alternative days में एक दिन छोड़ के ECT दिया जा सकता है 3 times per week. अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, फॉर एग्जांपल डिप्रेसिव है, सुसाइडल आइडिएशन है, बहुत ज़्यादा साइकोसिस हो रहा है, तो आप पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके ECT देते हैं. अदरवाइज आप पेशेंट को ECT के लिए बुला भी सकते हैं घर से. कॉन्ट्रा इंडिकेशन किन कंडीशन में हम नहीं देंगे? इसमें दो मेन कैटेगरीज है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. एब्सोल्यूट के अंदर आता है आपका फर्स्ट पॉइंट, या एक ही पॉइंट आता है, इंक्रीज्ड आईसीपी. इंक्रीज्ड आईसीपी के केस में आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि जो ईसीटी है वो ईसीटी के बाद पेशेंट का आईसीपी वैसे ही बढ़ जाता है. ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है आपका बढ़ जाता है पेशेंट का. तो अगर आप आईसीपी जिसका ऑलरेडी इंक्रीज है उस पेशेंट में अगर ईसीटी देंगे तो उस पर्सन में हर्निएशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. नेक्स्ट इज रिलेटिव. रिलेटिव इंक्लूड्स एमआई, अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है रिसेंटली, सीवियर हाइपरटेंशन है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, रेटिनल डिटैचमेंट है. नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट्स. साइड इफेक्ट्स इंक्लूड memory impairment, drowsiness, confusion and restlessness, poor concentration or anxiety, then headache, weakness, fatigue, backache, muscle ache, dryness of mouth, palpitation, nausea, vomiting, unsteady gait, tongue bite and incontinence. Now we'll see articles required for ECT. So first is ECT machine with electrodes, very important. Without this we cannot proceed the procedure. Then electrode applicator, gel and saline. This is required for the proper conduction of electric current. Then suction apparatus. Next is face mask, oxygen cylinder, tongue depressor, mouth gag, resuscitation apparatus like ambu bag and mask, then full set of emergency drugs, defibrillator, ECT drugs which we have seen in the previous slides, sphygmomanometer and stethoscope. So these are the articles required. One more very important, that is ECT bed. So this is the setup of ECT room. Now we'll see the ECT team. This team includes psychiatrist, anesthesiologist, trained nurses and AIDs. These are the helpers. Nursing care in ECT includes providing educational and emotional support, pre-treatment planning and assessment, preparing monitoring patient during the actual procedure, post-treatment care and evaluation. So these points we are going to discuss. So first, before discussing these points, I would like to tell you about 3 areas of ECT. First is pre-ECT room, then intra-ECT room and post-ECT room. So these 3 points are related to those. Pre-treatment planning and assessment done in this is done in pre-CT room. Then preparing and monitoring the patient during the actual procedure is done in intra-CT room, and post-treatment care and evaluation is done in the post-ECT room. So providing educational and emotional support includes, first we need to explain the procedure to the patient. Also consent is important. Then if patient is having any kind of feelings, emotions, that you need to understand and respond to those emotions. Then educate the patient concerning the procedure.
initiate education intervention based on knowledge deficit. So in the pre-CT room, the treatment on a pre-treatment nursing care is first complete the pre-treatment checklist. ट्रीटमेंट या ईसीटी से पहले जो जो चेकलिस्ट में इन्वॉल्व है पॉइंट वो आपको कंप्लीट करना है. Then identity is checked, patient identity is checked and the patient wears an identity bracelet. Possible है bracelet अगर आप दे सकते हैं तो patient को bracelet दें. Then ensure safe keeping of the patient's valuables. NPO रखेंगे आप. एनेस्थीसिया देने वाले पेशेंट को तो कहीं ना कहीं से एस्पिरेशन हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को 4 आवर्स के लिए NPO पे रखेंगे बिफोर द ट्रीटमेंट. पेशेंट्स हेयर शुड बी क्लीन एंड ड्राई टू अलाउ इलेक्ट्रोड कॉन्टेक्ट. ठीक है, ऑयल अगर पेशेंट ने लगाया तो आप उसको हेयर वॉश के लिए इंकरेज करेंगे. हेयर पिन्स, ब्रेसलेट, बॉडी पियर्सिंग शुड बी रिमूव टू अवॉइड बर्न्स. Patient should be encouraged to pass urine before the treatment to avoid incontinence during the procedure. Bowel, bladder दोनों को empty करने के लिए बोल देंगे procedure से पहले. ठीक है. नाइट डोजेज डाइजेपैम, बार्बिटूरेट्स और एंटीकन्वल्जेंट्स इनकी विदहोल्ड कर देंगे अगर पेशेंट की चल रही है, क्योंकि ये क्या करती है, जो सीजर का थ्रेशोल्ड है उसको इंक्रीज कर देती है. ओरल मेडिकेशन अगर मॉर्निंग में है कोई तो आप उसको भी होल्ड कर देंगे. देन वील एडमिनिस्टर, अगर आप IM देना चाह रहे हैं या SC सबक्यूटेनियसली एट्रोपिन सल्फेट दे रहे हैं तो आप 30 मिनट्स पहले इसको देंगे 0.6 mg पर kg वेट. और अगर आप IV दे रहे हैं तो you can give just before the ECT procedure. Then nursing care during ECT procedure or care in ECT room, intra-ECT care. Transfer the patient on a trolley from waiting room to the ECT room on a well-padded bed. Well-padded bed is important to provide comfort. Then place the patient comfortably on the ECT table in supine position. Apply ECG electrodes, BP cuff and pulse oximetry sensor. हमने जब अभी पीछे आर्टिकल्स पढ़े थे उसमें पल्स ऑक्सीमीटर और ECG इलेक्ट्रोड्स नहीं था, बिकॉज it should be available already in the ECT room. आप चाहे तो ये पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं. Then stay with the patient to allay or remove anxiety and fear. Give short acting anesthetic agent, thiopentol sodium 3 to 5 mg per kg body weight और muscle relaxant succinylcholine 1 mg per kg body weight. मसल रिलैक्सेंट के बाद क्या होता है, सारी मसल्स रिलैक्स होनी स्टार्ट हो जाती है. रेस्पिरेटरी मसल भी उससे रिलैक्स हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, एयरवे पेटेंट है या नहीं उसको इंश्योर करेंगे. अगर ज़रूरत है तो वेंटिलेटरी सपोर्ट आप स्टार्ट करेंगे. देन माउथ गैग शुड बी इंसर्टेड टू प्रिवेंट पॉसिबल टंग बाइट. ECT इलेक्ट्रोड्स को क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सलाइन और 25% बाइकार्बोनेट सोल्यूशन और कंडक्टिंग जेल. स्कैल्प को प्रिपेयर करना है और इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करेंगे यूनिलेटरली और बायलेटरली. देन विल हाइपर एक्सटेंड द हेड ऑफ द पर्सन विद सपोर्ट टू द चिन. चिन को सपोर्ट करते हुए आपको क्या करना है, पर्सन का हेड जो उसको एक्सटेंड करना है, हाइपर एक्सटेंशन. देन शोल्डर और आर्म्स को सपोर्ट करना है पेशेंट के, और साथ ही साथ उसके थाइस को इसी शीट से आप रिस्ट्रेन करेंगे. ECT देना है. ECT का जो वोल्टेज है उसको आप मॉनिटर करेंगे, इंटेंसिटी चेक करेंगे, ड्यूरेशन चेक करेंगे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस की. सीजर एक्टिविटी आप कफ मेथड के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं. कफ मेथड में आपको क्या करना है, आप कफ को एंकल के ऊपर टाई करके ECT करंट देने से पहले इन्फ्लेट करते हैं, तब ECT करंट दे दिया जाता है, उसको डिफ्लेट धीरे धीरे स्लोली करेंगे तो आपको इजीली जो सीजर एक्टिविटी हो रही है वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, जैसा भी हमने देखा था एक स्लाइड में कि किस तरीके से ट्विचिंग ऑफ फीट होता है. ठीक है, तो इतना इजीली आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो बहुत सारे पेशेंट में, क्योंकि उसका जो अमाउंट होता है या जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है.
यू नीड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो कफ मेथड उस चीज को अच्छे से समझने में हेल्प करता है। देन द प्रेजेंस ऑफ इनिशियल टोनिक स्टेज, जो हमने देखा था टोनिक स्टेज क्लोनिक स्टेज कितने कितने सेकेंड्स की होती है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। देन सक्शन करना है आफ्टर द प्रोसीजर। रेस्पिरेशन अगर नहीं रिस्टोर हो रहा है, जरूरत है ऑक्सीजन देने की, तो आप ऑक्सीजन देके रिस्टोर करेंगे। नाउ we'll shift the patient to the post ECT room where we'll observe and record the vital signs of the patient. कंटिन्यू ऑक्सीजनेशन देंगे अगर जब तक पेशेंट खुद रेस्पिरेट करना स्टार्टिंग कर देता है। पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन और रेस्टलेसनेस के लिए हमें पेशेंट को चेक करना है। अगर आपको लगता है कि पेशेंट को पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन और रेस्टलेसनेस है, देन वील गिव डायजेपम आईवी। देन साइलेंट पोजीशन करके आप पेशेंट के सिक्रीशन को क्लीन कर सकते हैं। ट्रांसफर करेंगे पेशेंट को रिकवरी रूम के लिए। रिकवरी रूम में आपको पेशेंट को बोलना है कि वो 30 मिनट से 1 घंटे के लिए रेस्ट करे। आप पेशेंट को रीएश्योर करेंगे, देन रीओरिएंट करेंगे वार्ड से, क्योंकि कंफ्यूजन होता है तो रीओरिएंट करना भी इम्पोर्टेंट है। देन यू कैन आस्क पेशेंट फॉर टी और ड्रिंक। प्रोसीजर को आपको रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है प्रोसीजर का, उसकी फाइंडिंग्स लिखनी है, रिजल्ट लिखना है। सो these are the points under the nursing care during the pre-ECT, intra-ECT and post-ECT. Thank you.